Okay, dear students, now we would study interstate disparities in lesson number 3 of economics. Sir, here what is the meaning of interstate disparities? Here we are discussing about the poverty. It means here we would study the different states have the different poverty ratio. At national level, 22% people are poor. But here we would study in which state how many people are poor. Dear students, Odisha is the most poorest state. Then Bihar is the second most poorest state. There are some states which got success in reducing the poverty. For example, Punjab and Haryana got success through the growth of agriculture. Kerala got success through investment in human resource development or in the investment of health and education. West Bengal got success through the investment in land reforms. Likewise, Andhra Pradesh and Tamil Nadu got success through the proper distribution of food grains. Now we are going to discuss about the global poverty scenario, or it means we would study about the poverty ratio in different countries. Dear students, as per World Bank, a person who is unable to spend per day $1.90 on her or his daily requirements, then he is considered poor. Dear students, in 1992, 43% population of world was considered poor according to World Bank. But in 2008, it has decreased up to 12%. In China, in 1981, 85% people were poor. But as per 2008, it has reduced up to 14%, and as per 2011, it has reduced up to 6%. Dear students, likewise, in sub-Saharan African country, the poverty has increased. In 1981, it was 51, but in 2008, it has decreased up to 47. It means here the word is used rose or increased, but we have to say it has decreased. In Latin America, the poverty ratio remain same. The poverty ratio remain same. Then we would study the causes of poverty in India. Dear students, here we would study what are the causes of poverty in India, or what were the causes of poverty in India. First, during the British rule in India, the traditional industries destroyed by the Britishers in India. Second, after the independence of India, the economic growth of India up to 1980s was very very low. 1980 तक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 तक दो फ्रंट पे फेल हुई. फर्स्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. आगे चल के आप देखोगे ग्रीन रिवोल्यूशन ने इसे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद की. आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for removing the poverty. But before it, we would also discuss that there are many socio and economic causes. There are many socio and cultural causes. जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, धार्मिक क्रियाक्रम में बहुत पैसा खर्च करते हैं. जैसे जिस एरिया में आप रहते हैं, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, यहाँ पे आप देखते हैं बच्चों की शादी में बहुत पैसा खर्च किया जाता है. बुजुर्ग की डेथ के ऊपर मृत्यु भोज वगैरह किया जाता है. ये सब सोशियो कल्चरल कॉजेज हैं जिस पे बहुत पैसा खर्च किया जाता है. ये भी गरीबी के कारण. अब हमारी गवर्नमेंट ने गरीबी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए. फर्स्ट, गवर्नमेंट ने प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, और दूसरा पॉवर्टी को रिमूव करने के स्टेप्स उठाए. उनमें से पहला है, आप देखोगे, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. इट वॉज स्टार्टेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इट वाज स्टार्टेड इन 2005. इसका एम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में गरीब लोगों को प्रोवाइड करना था. इसका एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था. ड्रोट आए तो उसको मैनेज करना, जोड़ तालाब में पानी को स्टोर करके सॉइल इरोजन को रोकना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना. इसमें 1/3 जॉब्स महिलाओं के लिए रिजर्व हुए. देन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. इट वाज स्टार्टेड इन 1993. इसका एम था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड इन स्मॉल
टाउन्स उनको अपना स्वयं का छोटा मोटा बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने मदद की। देन इन 1995 रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका एम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इसके अंडर ये तय किया गया कि 10th 5 ईयर प्लान में 25 लाख जॉब्स इस प्रोग्राम के तहत जनरेट होंगे। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन 1999। इस प्रोग्राम का एम था गरीब जो लोग हैं उनको और मदद देना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, उनको कहीं यूनाइट करके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इन 2000। इसका भी गरीब लोगों को मदद करना मकसद था। उनको प्राइमरी हेल्थ मीन्स हेल्थ से संबंधित बेसिक फैसिलिटीज़, प्राइमरी एजुकेशन, उनको रहने के लिए मकान, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बिजली की व्यवस्था करने के लिए। देन अंत्योदय योजना दैट वाज स्टार्टेड इन 2000 स्टार्ट किया गया। इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीबी को उठाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स उठाए, बट हमारे सामने अब भी बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको रिमूव करना अब भी हमारे सामने एक बड़ा टारगेट है। उसे अभी भी हमें हटाना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी काम हमें करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ऑफिशियल डाटा गरीबी को बहुत कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं और वो मुश्किल से ना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे गली मोहल्ले में फेरी लगाकर सामान बेचने वाला, जूते की मेंडिंग पॉलिश करने वाले लोग, उनके पास आज भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके लिए भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स।